अगर लैपटॉप से हैं, you can just do present now. Yeah. Okay. Present now में when you will do, आपको it will ask that which screen to share. So you just share that whole entire screen, so it will show that. Okay. Are you able to see my screen now? Not now. No, not yet. देखा. When you will show present now, it will show your entire screen, a window or Chrome tab. You put on entire screen, and then it will show you the computer in the screen. Another screen will open, and just click on that, and then do OK. It will do. It will work. Okay. Screen. Hello, I am unable to see. Yeah. Present screen है ना, काम नहीं कर रहा है इसमें. Present now. अच्छा, Amit, I think you have to give him some. No, there is nothing. There is nothing like an access. I think. Okay. 1 second. Let me check and see. Like Harish ji is sharing now. Harish ji, yeah. So he can also share. Okay. Now I pressed your entire screen. Yeah. No, just choose the screen which you want to share. Yeah. You do the entire screen and just click on the screen. It will show, and then you can select. Okay. Are you able to see my screen now? No. Not yet. Okay. No, not yet, Jagwa. Yes. Let me see present now. So what is the error you are getting? क्या error क्या आ रहा है? Error नहीं, वो डमी हो जा रहा है. It has got discolored. Present now. Okay. आपको जस्ट प्रेजेंट नाउ करके एंटायर स्क्रीन कीजिए, एंड एंटायर स्क्रीन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको जस्ट उस पे एक और अलग विंडो खुलेगी. उस विंडो पे आपको क्लिक करना है अंदर, वो जो स्क्रीन दिखाएगा जैसे ही वो ब्लू होगा, देन यू डू ओके, ऑटोमेटिकली स्क्रीन शेयर विल स्टार्ट. आप एक बार प्रेजेंट हो, आपके इसमें दबा क्लिक करो, देखते हैं. जैसे मैंने एंटायर स्क्रीन किया, उसके बाद क्रोम इट शोज शेयर योर एंटायर स्क्रीन, क्रोम वांट्स टू शेयर द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन. उसके बाद मैंने उस पे भी क्लिक किया नीचे, एंड देन शेयर पे क्लिक किया. ऊपर क्लिक करने के बाद अभी देखिए आपको, यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? यू कैन सी माय स्क्रीन, करेक्ट? Correct. Okay, now I am clicking this present now. Okay, now shall I click this your entire screen? Yeah. If you want to show your entire screen, that is okay. Or else you want to show a particular tab, that you can just open. I think entire screen will be better because he might be doing couple of other screens on. Okay. Do the entire screen. वो बता रहा है, sorry an error has occurred when screen sharing. Can't share your screen बोल रहा है वो. आप लैपटॉप से ही ज्वाइन है? या तो एक बार मीटिंग छोड़ के वापस ज्वाइन. एक बार दोबारा मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज. Maybe, or he can share his material with someone, or someone can share the screen. No, he might be using his software. So I think he's going to open. Yeah, he's going to open charts and all that. So maybe. तो जगदीश भैया, आप एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए एक बार. आई थिंक फ्यूचर में तो जियो मीट करेंगे अब हम यूज. सही है.
I heard Geo is like a carbon copy of Zoom. Completely. I will send you a couple of screens. Pixel by pixel copy. I think they should do some innovation there. They are doing innovation in collecting fund. So they will become another China then. That is what Geo is doing. Na? They are only collecting fund and doing copy. Only blue color they have made little darker, otherwise complete copy. Like Xiaomi did copy to Apple. I think Jagdish Bhaiya has joined. Yeah. Has joined. Oops. Okay. Are you able to present now, Jagba? Yeah, I'm taking this your entire screen, and now this one are you? Huh? वो राउंड राउंड हो रहा है उसको बंद होना। जगू भैया जब आप ये एंटायर स्क्रीन करेंगे उसके बाद वो जब एक अलग से विंडो खुलता है, उस विंडो में नीचे एक क्रोम वांट्स टू शेयर के बाद ना नीचे एक जस्ट स्क्रीन दिखाता है, उस पर क्लिक कीजिए एंड देन शेयर कीजिए। आप एनी डेस्क लेके कर सकते हैं क्या? या नहीं तो ओके, यू टेक माय एनी डेस्क, फिर उधर से यू कैन यूज द चार्ट्स। क्या ऐसे करना? I'll take any desk from you and then I'll share my screen. ठीक है, ऐसे करना है? चल जी, करता हूँ, 1 मिनट। नहीं, मेरा एनी डेस्क लेके इधर सेपरेट कर देना। 1 मिनट कर रहा हूँ मैं, जस्ट एनी डेस्क। काम 296। 1 मिनट। क्या नंबर क्या है? 2963611। ओके ठीक है, 1 मिनट। 724। या 1 मिनट आ रहा है। It's waiting for remote site to accept the connection. Okay, आ रहा है शायद अभी। या ओके, 1 मिनट।
accepted. One second. Let me share the screen. Okay, guys, can you see now? I think echo आ रहा है. Some screen is visible now. Now something is visible. Yeah. Yes, it's visible. Okay, let me mute myself. It is echoing. No, it's not echoing. Okay. Hello. Hey, we can hear you. Yeah, we Shall we can. start? Yeah, okay, fine. Yeah, fine. See, basically, ज्ञान के बारे में जो बोलते हैं कि he is actually using numbers and patterns and some astro part to define the starting point of a price and ending point of a price. Okay. The main reason for the success of GAN technique is that the risk involved is very low and the profits involved are very high. Okay. Yeah, Amit, So, can you start the recording? Today, Yeah, recording is already going on. Yeah. Okay. So basically, we'll start with actually what is the risk reward ratio? How do you determine the risk reward ratio and how to select the stock and what are the basic ingredients involved in taking the decision of any buy or sell? See, straight away I'm going with how to take a trade and other things. Let us not discuss too much about GAN and other things because it is not so necessary to know who was GAN, what he was doing and other things. Okay. अभी देखिए, whenever we start to know the trend is defined in different periods. Like, firstly, if you see the trend from a small period, if you see in a 5-minute chart, okay, you may say that the trend is up or down for a few minutes or a few hours only. You cannot say define the trend for the whole day or for 1 week. Okay. Are you with me? Yes. Yeah. Yes. Hello. Yeah, we can hear you. Yeah. Okay. Yeah. Fine. अभी क्या है वो इंटरेक्शन वन वे जैसे लग रहा है, पता नहीं चल रहा है. True, but अगर सब लोग माइक ऑन करेंगे तो फिर वापस इको होना शुरू हो जाएगा वो. ठीक है. हाँ, सही बात है. ठीक है. देखिए, जब कभी भी हम ट्रेंड देखते हैं, हर समय का उसका एक सीमा रहता है कि भाई आप इस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो it will show you for certain time and for certain level only. It will not define for a higher scale. So actually we need to see the trend or define the trend from a higher perspective. Yeah, we should see it from yearly chart, then we should come to quarterly, then we should come to monthly, weekly, daily, and then intraday. This is the actual fine procedure of knowing the trend. Okay. Just a second. I'm making this. So Jagdish Bhaiya, if anyone want to ask question, right, they can ask in between, correct? Yeah, they can ask. Yeah, that will be better. Okay. And guys, you can unmute yourself and then ask. Otherwise, you can again mute yourself. Okay, Jagdish Bhaiya, please start. Yeah, I'm continuing. Just a second, I'm open.
What happened next? Anything? Hello. Yeah, Jagdish. Yeah. Hello. Then voice is not coming. Yeah, voice is also not coming. Yeah, correct. श्यामजिया जी आवाज नहीं आ रही आई थिंक. Let me check. 1 minute. Is he there or not? Okay, once नहीं है, इधर तो online है. No, I think he is left. I cannot see him. Adi's on. I think he's not there. Yeah, he's not there. We can see the screen because you have shared it. Yes. Yeah. So I think definitely net is not a problem. Let me check with him. I think the session ended. Reconnect. I think internet is a problem. Data is a big problem nowadays. Irrespective, you're using a broadband or you're using a Wi-Fi, whatever you've been using, off late data has been a very big concern today. Yeah, absolutely. In Bangalore also, like I think everyone might have experienced, internet speed has become very slow. Yeah, because maximum people are doing work from home Yeah. and they've been using broadband extensively now. Yeah, correct. Well, till he comes back, I think we should at least introduce ourselves here. Yeah, I think. संदीप भैया चलो आप ही स्टार्ट कर दो इंट्रोडक्शन. इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है. हाँ, you start the introduction ना then. It's becoming more of formal kind of thing. It's better. Yeah, but what you say is right. It becomes a little more formal, but then at least it's always easier for us to know each other well. Let's. Yes, I think we'll switch on our cameras also. Yeah. Sure. Well, hello people. This is Sandeep Gandhi. I'm from Bangalore, and I'm in the business of washroom hygiene. I have been staying from Bangalore right from birth. Well, as far as trading is concerned, I'm still a very new thing to it. I'm just learning into it. So hi everyone, this is Amit Maheshwari. I am from Bangalore. So I have started doing a little bit trading and just trying to learn some technical analysis stuff. Shyamjiya ji, please. Yeah, hi, this is Shyam Sarda here. So I've been in IT for some time, and I've been trading. I would say I was trading in a very untidy way for like 15 years back or 10 years back. जो भी tip मिला ले लिया, डाल दिया, and things like that. So I think for the last 6 months, I would say 5-6 months, I'm trying to do it in a more organized way, in a proper way, with proper learning. Trying to learn some technical analysis, some charts, and doing a lot of reading some books, trading books also. And also we are definitely got some help with respect to technical analysis from Jagdish Sarda also. He's my brother. So I think, yeah, that's where I am. So plus also interested in startups. Yeah, I think that's all about me. So next, कौन है? Suggest Amit, you start calling out people one by one. Na? That will make things easier. You know maximum all of them. Saurabh will go with the next one. Saurabh Ladda. Hi guys, I'm Saurabh, basically from Bangalore, in markets for close to 17-18 years, more from investment perspective, not so much from trading, but GAN is an interesting methodology because it uses numbers and patterns, which I'm generally pretty passionate about. So yeah, I'm here and happy to learn something from Jagdish. Seems like many people have left as soon as introduction started.
So Ashish ji, your introduction, please. Yeah, Ashish Adi this side. I'm from Chandigarh right now, basically from Maharashtra, but right now working at Chandigarh. I work with Hero MotoCorp, two-wheeler manufacturer, since 2010, and maybe in market from 2011 itself. Not a technical specialist, but have learned a lot from my own mistakes. So my own mistakes are my guidance. So uh, using all kind of investment strategies, mutual fund, shares, or I mainly now doing options, and in that also option sellings. Thank you. Oh, great. So I think Sushil भैया भी हैं line पे. Sushil भैया, you are there? I can see you. Sunil ji, can you introduce? Yeah, Sunil ji, please, your introduction. We have Sushil bhaiya also. Yeah, Sushil bhaiya. Hello, मैं सुशील हेड़ा. I'm into garment export business and I'm doing investing since last 25 years. So शुरू में काफ़ी नुकसान हुआ as usual. I think everybody has experienced the same. But last 10 years से अच्छा हो रहा है after following technicals and all. So I do a mix of all the things. So I'm not exactly, you can say, an expert in anything, but a mix of all the things. So basically Dow theory, price movement और उस पे ज़्यादा वॉल्यूम पे ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ. Thank you. So we all are getting benefited from your lot of learnings. Everyone knows that. Yeah, Sunil ji, please, your introduction. Sunil Mandora ji. I think Adi's son is joined. Oh, Am I audible now? I think yes, you are. Yeah. So hi all. My name is Sunil Mandavra. I'm staying in Bangalore for almost now 2016 years now. So I'm not into the trading as of now, but I wanted to enter into the trading. So just following all the groups discussion, as well as want to learn more about the trade. So currently working in a IBM in a IT firm. Thank you. Sorry, I will speak on mute. So I think we have Jagdish bhaiya now, so we can start the session in the meantime. I think Jagdish, we can start. He's mute, I think. Jagdish bhaiya, can you unmute yourself? He is doing. Mute. Yeah, Jagdish bhai, I think we can hear you now. Yes. Now you can hear me. Yes, we can hear you. Okay. Yeah. Have you got the concept of minor trend up, minor trend down? Hello. So guys who are expert like Saurabh and Vijay ji, and if you can respond, that will be better. People like us, we don't know much, so that will. Yeah. So I don't know, Jagdish bhaiya. Okay, you are not understood, no? Yeah. Once again, I'll show you.
देखिए एक कैंडल है और ये दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ अगला दिन, तो जब कभी भी पिछले कैंडल का हाई कट जाता है तो माइनर ट्रेंड इज अप। ओके, और एक कैंडल है और इसका कैंडल का लो कट गया अगले दिन। ओके, तो द माइनर ट्रेंड इज डाउन। This is on intraday or closing basis? So see, GAN does not consider close at all. He considers only high and low. वो क्लोजिंग का यूज ही नहीं करते हैं उनके स्टडीज में। Okay. Only high and low is considered in GAN studies. Okay. तो अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा, तो आपको बेस्ट ट्रेड टू बी टेकन इज एट दिस लेवल लो ऑन द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट कैंडल। अगर आपको ये लो के पास में आपको ट्रेड मिलता है तो दिस लो विल फॉर्म ए वेरी रीजनेबल प्राइस टू एंटर इनटू एंड योर स्टॉप लॉस विल बी वेरी मिनिमम। एक 2 पॉइंट ऐसा रख के आप स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड ले सकते हो। ओके, लेकिन इसको रीडिफाइन करते हुए क्या किया है, जब कभी भी कोई भी कैंडल का हाई कट जाता है अगले कैंडल में, तो अपन क्या ढूंढते हैं कि भाई समझो दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, ओके, और वेडनेसडे को अगर आपको ट्रेड लेना है तो उसमें किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड देखो, ट्रेंड तो ऊपर है बोल के अपने को समझ में आ गया है इधर, तो अपन वेडनेसडे के दिन वी कैन टेक ट्रेड्स ऑन 2 to 3 criterias. One is if the low comes near this candle, okay, this is first criteria. Okay, second criteria is if the open low is same, और ओपन लो में ज्यादा फर्क नहीं है, 0.3% का वेरिएशन भी होता है ना, तो सेकेंड ट्रेड आप ले सकते हो नियर दिस कैंडल। ओके, और समवेयर इट में कम, बट ओपन लो शुड बी 0.3% मिनिमम, उतना तो डिफरेंस रहा तो चलेगा। ठीक है, और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि रिट्रेसमेंट्स पे लेते हैं। तो GAN क्या बोलते हैं, he divides everything into 3 parts. One is 33% retracement, one is 50%, and the third one is 66%. Okay, ये तीनों में कोई भी लेवल आपको आता है रिट्रेसमेंट के तौर पे, आई विल शो यू प्रैक्टिकली ऑन द चार्ट्स। ओके, तो देन इट इज ए गुड बाई अपॉर्चुनिटी विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, ये माइनर ट्रेंड अप और माइनर ट्रेंड डाउन का ये सिंपल डेफिनेशन है बाय GAN। ओके, involving only the high and low of the candle of yesterday and high and low of candle of today. It can be used in any time frame. It may vary from monthly, weekly, daily, any time frame you can use this candle. Okay, the beauty of this is that the stop loss will be very small. So let us start with a simple example in the yearly chart. Okay, now just a minute. Okay. आई थिंक आवाज दोबारा से बंद हो गया है। नहीं आवाज आ रहा है, एक सेकंड। नहीं, वो सेट ही सेटिंग अप है। ओके हाँ ठीक है, हो गया है अभी, आई एम रेडी। चलिए
देखिए दिस इज ईयरली चार्ट. ओके, इफ सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम हियर समवेयर हियर. ओके, अगर इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काट दिया तो ट्रेंड क्या हो गया, अप हो गया है. ओके, तो अपने को क्या ढूंढना है, अगले कैंडल में अपने को सिर्फ बाइंग ही ढूंढना है, अपने को सेलिंग नहीं ढूंढना है इधर. ओके, तो आप इधर कैसे ढूंढेंगे, इधर if this candle low is near this candle it is a buy, first condition. Second क्या है, इसका retracement जब आप देखेंगे. okay, if the retracement from this candle to this candle, okay, if it comes near some 33% or 66%, okay, or if the open low of this candle is same, you are going to take the trade. okay, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इधर एक कैंडल के पास इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन अगर अपन देखेंगे इस कैंडल को इस कैंडल देखेंगे, सो दिस माइनर ट्रेंड इज अप हियर. ओके, देन माइनर ट्रेंड अप होने से आप क्या करेंगे, आप इसको रिट्रेसमेंट लगाएंगे और विल ट्राई टू टेक एनी ट्रेड नियर दिस 33% और 50% और 66.6%. ओके, अभी जैसे देखिए इस कैंडल का लो इस कैंडल ने काट दिया तो माइनर ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया. माइनर ट्रेंड डाउन होने से आपको क्या करना है, इस कैंडल में आपको सेलिंग ढूंढना है. तो सेलिंग कहाँ पे ढूंढेंगे आप सेलिंग ढूंढेंगे, इस कैंडल को रिट्रेसमेंट लगा लेंगे. तो ऑलमोस्ट नियर दिस 66% को टॉप बना है इधर. ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो. ओके, या फिर जब ये कैंडल के आसपास में आता है तो भी शॉर्ट कर सकते थे. इधर तो चांस नहीं मिला आपने को 66.6% इधर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. भले अगर इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो आपको अगले कैंडल में भी सेम लेवल के पास शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अगर आप सिंगल कैंडल का इसका जो हाई था 764.3 है और ओपन था 759.5, सिर्फ 5 ही पॉइंट ये ओपन होने के बाद ऊपर चला है, तो उसके बाद आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही मिली है इधर. So this single candle is from 764 to 285 points. 285, almost 400 points दिया है इस सिंगल कैंडल ने. तो अपने को स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ चाहिए ना. यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन द ट्रेंड, माइनर ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है, फिर उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा. ओके, तो वो क्वार्टरली वाला था, अभी मैं बताता हूँ मंथली वाला. ये देखिए सिंपल और एक बताता हूँ. ये देखिए ये कैंडल का लो इस कैंडल ने काटा है. ओके, सो व्हाट यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी टू शॉर्ट इन द नेक्स्ट कैंडल. आपको ऑलमोस्ट इसके टॉप के पास मिल जाएगा, या फिर इसके रिट्रेसमेंट में मिलेगा, या फिर ये ओपन हाई सेम रहा तो मिलेगा इधर. सो इधर आपको डबल टॉप के टाइप में इधर शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा है. तो जब कभी भी अपन ट्रेड के लिए देखते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट में देखते हैं, तो पहले अपने को जाना है बड़े टाइम फ्रेम में. ईयरली में अगर कोई हायर हाई बनता है तो आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लोअर लो बनता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. ठीक है, अगर कैंडल कोई बड़ा सारा बन चुका है तो यू शुड नॉट वेट फॉर दिस टाइम फ्रेम, यू कैन गो फॉर लोअर टाइम फ्रेम ऑल्सो. ओके, अगर अपन डेली चार्ट में भी जाते हैं तो देखिए सिंपल सा है कि अभी जैसे इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काट दिया है. ठीक है, सो आपको अगला कैंडल में क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड इफ द ओपन एंड लो आर सेम. एंड इधर देखिए इस कैंडल का ओपन कितना है 407.2, लो कितना है 407.2. सो दिस वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू टेक द ट्रेड. अगर अपन सिर्फ इधर सिंगल ट्रेड इधर लेते हैं तो सिर्फ इस सिंगल कैंडल में 18,840 का प्रॉफिट होता है. तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन स्टॉक सिलेक्शन ऑल्सो. आपको ये पैटर्न ढूंढना पड़ेगा भाई, जहाँ पे हाई हायर हाई बन गया है कैंडल में, और इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो. इवन इट वर्क्स इन इंट्राडे ऑल्सो, इवन इन 60 मिनट्स इफ यू गो. ठीक है, ये देखिए इस कैंडल का हाई कितना है, it is 407.45. this candle high is 407.45 and this candle high is 407.5. so you leave this.
यहाँ पे हायर हाई बन गया है, तो आपको अगले कैंडल में बाई ढूंढना है। बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी जहां कहीं पे भी मिलेगी, जैसे बताया गया कि दिस इज ए माइनर ट्रेंड अप, ओके, तो इट में भी विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। But how will you choose the target इसमें? देखो टारगेट क्या रहता है अभी, इफ सपोज यू टेक द ट्रेड, ओके, अभी दिस इज ए लो, इसका लो इसने काट दिया, तो आपको कहीं पे भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला समझो यहाँ पे, ठीक है। आप रिस्क कितना ले रहे हैं? इफ यू आर टेकिंग द रिस्क फ्रॉम दिस कैंडल हाई टू दिस कैंडल हाई, इफ सपोज दिस इज 442 एंड दिस इज 446, 4 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं आप। 4 पॉइंट का रिस्क अगर ले रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:3 के ऊपर ही रखना चाहिए। Okay. अगर आप 4 पॉइंट रिस्क ले रहे हैं तो 12 पॉइंट का कम से कम आपको प्रॉफिट होना चाहिए। बट ये इट मे गो टू 1:100 आल्सो इन गैन थ्योरी के हिसाब से। एंड हाउ टू फाइंड द स्टॉप लॉस, की कितना स्टॉप लॉस रखें? हाँ देखिए, अभी अपन एक इधर आते हैं, ठीक है, तो भी एक चार्ट में चलते हैं। इसमें जो आपको ये सब डॉट्स दिख रहे हैं ना, बड़े डॉट्स, दैट्स आर ऑल वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है ये। अभी देखिए इसका हाई इस कैंडल ने काटा, ठीक है, तो इस कैंडल का ओपन देख लो कितने पे हुआ, 427.05 और लो था 426.95, तो ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप इसको सिर्फ 0.3% का स्टॉप लॉस अगर रख के चलते हैं ना, ओनली 0.3% स्टॉप लॉस रख दो ओपन से, तो आपको ये ट्रेड पैसा देके जाएगा पूरा। ओके, देखो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, द कांसेप्ट इज वेरी सिंपल। मैं बताता हूँ और एक बार बताता हूँ। देखिए इस कैंडल का हाई कितना है, 10,559.55 पैसा है, अगला का 559.10 पैसा है, तो इस कैंडल ने नहीं काटा, तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काट दिया है, ठीक है। तो whenever a candle high has cut the high of previous candle high, so trend minor trend is up। जब कभी भी माइनर ट्रेंड अप होता है तो आपको अगले दिन बाइंग ही ढूंढना है, सेलिंग नहीं ढूंढना है। बाइंग ओपन से अगर 0.3% के अंदर आपका कैंडल टिका हुआ है तो आप उधर बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढो और ट्रेड ले लो। थोड़ा मैं आपको है ना स्कैनर से जो मैं स्कैन करके डाला है ना, थोड़ा आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको आसान हो जाएगा। One second. How will you decide whether you have to take it 33, 50 or 66%? हाँ हाँ, वो बताता हूँ आपको। So if I have entered at 33 and it goes further down, so how should I know where I should enter? Yeah, I'll show you. We'll start with this candle. The candle low is around 219. यहाँ से एक माइनर ट्रेंड अप हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा स्क्रिप्ट है? ये सेंचुरी टेक्सटाइल्स है। Okay. This is Century Textiles. Okay. Okay, and this is we are on which chart? Daily chart. This is Century daily chart है, ठीक है। Okay. अभी इस कैंडल बॉटम कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा है ऊपर के तरफ, ठीक है। Correct. ओके, तो अपने को क्या चाहिए, अगले दिन अपने को बाइंग ढूंढना है, सेलिंग नहीं ढूंढना है। ये जो लाल कैंडल बनी है अपने को इस कैंडल में बाइंग ढूंढना है। तो बाइंग ढूंढने का तरीका क्या है, आप पहले तो एक रिट्रेसमेंट लगा लो इसको, ठीक है।
जनरली क्या है 33%, 50% और 66% रेस्पेक्ट होता है ज्ञान के हिसाब से, ठीक है। तो इस हाँ मैं बताता हूँ 33% पे ही रुकेगा, 50 पे रुकेगा, कैसा करना मैं बताता हूँ आपको ना। अभी रिट्रेसमेंट जो आप लगा रहे हैं वो फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल पे लगा रहे हैं, सेकंड कैंडल पे लगेगा। एक मिनट, सॉरी, हाँ फर्स्ट से सेकंड ही लगाएंगे, थर्ड नहीं लगाएंगे। करेक्ट, थर्ड तो बन रहा है ना। या करेक्ट, सॉरी। ठीक है, अभी देखिए ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल को आपने रिट्रेसमेंट लगाया, आपको पता था कि आपको थर्ड कैंडल में बाई करना है, तो थर्ड कैंडल का रिस्पेक्ट देखो आपको 33% पे मिला है, ठीक है। इसको अपने को फिर से इंट्राडे में जाना पड़ता है। इंट्राडे में देखो ज्ञान के अंदर क्या होता है, दो तरीके के पैटर्न बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। एक तो डबल बॉटम का पैटर्न काम करता है, दूसरा 1 2 3 जो एन पैटर्न होता है ना, वो अच्छी तरह से काम करता है, ठीक है। तो अभी ये पुराने डाटा का अपने पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे डाटा कम है, तो अपन इधर फ्रेश इधर कहीं तो लेते हैं दूसरा लेटेस्ट में। ये देखिए, if suppose we are at this bottom, this candle high is broken by this candle, so we are going to buy the next day. For Wednesday we are going to buy, this is Monday, this is Tuesday. Tuesday ने Monday का हाई काट दिया है, बट क्लोज लोअर है, लेकिन ज्ञान है ना क्लोज को कंसिडर नहीं करते हैं, वो कंसिडर करते हैं सिर्फ हाई एंड लो। तो हियर व्हाट हैज हैपेंड, द ट्रेंड इज अप, माइनर ट्रेंड इज अप। तो आप जो थर्ड डे है आप बाइंग के लिए ढूंढेंगे, तो बाइंग के लिए ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे, ये बॉटम से ये टॉप के लिए अपन लगाएंगे रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट लगा के अपन आ जाएंगे अभी इंट्राडे में, ओके। ये देखिए यहाँ पे अपन ने रिट्रेसमेंट लगाया एंड द थर्ड डे इट हैज टेकन रेस्पेक्टेड 50%। नाउ विल कम टू इंट्राडे, ओके। 30 मिनट्स में आ जाओ या फिर हाँ। तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ था डेली में, और अपन इंट्राडे में अपन कैच कर रहे हैं इन 50% दर इन डेली चार्ट, ओके। इसमें थोड़ा the low of this candle is 10,244, okay। so intraday में जाते हैं अपन 10,244। देखिए जब ये सपोर्ट लिया है, अगर अपन इंट्राडे चार्ट में अगर अपन वही रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये सपोर्ट लिखा रहा है एट 66.66%, ओके। तो इधर क्या हुआ, हाई हायर हाई कैंडल बन गया है, ठीक है। तो आपको हाई हायर हाई कैंडल बनते ही आप ट्रेड ले सकते हो इधर। जब कभी भी कोई रिट्रेसमेंट सपोर्ट बनेगा और हाई हायर हाई कैंडल बन जाएगा तो आप उधर ट्रेड ले सकते हो। एंड दिस सिंगल ट्रेड, अगर आप स्टॉप लॉस इस कैंडल का भी रखते थे, ठीक है, 10,236, इट हैज गॉन अप टू 10,598। सिंगल ट्रेड कैन गिव यू बिगर, मतलब सेकंड कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल पे, हाँ हाँ सेकंड ग्रीन कैंडल पे, करेक्ट। या ये देखिए इधर भी हायर हाई बन गया ना, तो आप इस कैंडल का लो रख के यहाँ जैसे ही ये कैंडल का हाई कट गया तो आप इसको ट्रेड ले सकते हो। एक मिनट,
ये देखिए मैंने इसको कैसे डिफाइन किया इधर, आई विल शो यू। हेलो हेलो, हाँ जी, ऑल ऑफ यू या फाइन फाइन। देखिए सर, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल, ये दिस इज ए क्वार्टरली चार्ट, ये कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा है, तो अगले क्वार्टर में आपने को बाइंग ढूंढना है, ठीक है। तो अगले क्वार्टर में बाइंग आप कैसे ढूंढेंगे, देखिए इस कैंडल का ओपन कितना है, 351 है, लो है इसका 347, तो 4 पॉइंट का ही अपने को ओपन और लो में फर्क है। तो जब कभी भी आपको हायर हाई दिखता है कोई भी टाइम फ्रेम में, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अपने को प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है। तो जैसे ये हाई हायर हाई हो गया और इधर ओपन लो में ज्यादा फर्क नहीं है, 4-5 पॉइंट का ही फर्क है, तो यू कैन टेक द ट्रेड ओवर हियर, इवन इफ यू टेक द ट्रेड इन दिस आफ्टर द ओपन। ओके, दिस सिंगल कैंडल हैज गिवन अस 61,380 प्रॉफिट सो फार। मैं और बताता हूँ आपको एग्जांपल्स। आप स्क्रिप्ट के नाम के साथ बताएंगे सॉरी प्लीज, एक्चुअली हाँ नाम के साथ बता, हाँ बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ हो चलिए, अभी स्क्रिप्ट के नाम के साथ बता रहा हूँ आपको, एक एक। हाँ वो थोड़ा सा मतलब है तो यू आर ब्लैंक एक्चुअली, क्यों बात कर रहे हैं पता नहीं। या ठीक है। ये देखिए व्हाट आई वाज स्पीकिंग वाज अबाउट कैडिलैक, हायर हाई बन गया और कैंडल का ओपन और लो में 4-5 पॉइंट के फर्क है, तो आप इधर ट्रेड ले सकते हो। बट अभी जब आप क्वार्टरली चार्ट देख रहे हो ना, आप तुरंत आप उसको वीकली और मंथली चार्ट, डेली चार्ट में आके उसको देख सकते हो कहाँ पे आपको कोई एन पैटर्न बन रहा है या फिर डबल बॉटम बन रहा है या फिर ट्रिपल आर स्मॉल स्टॉप लॉस कोई मिल रहा है क्या, तो आप उधर ट्रेड लेना चाहिए। ये देखिए उसके बाद और बताता हूँ आपको, ये मैरिको है, मैरिको इंडस्ट्रीज में देखिए इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, लाल कैंडल का हाई अगले कैंडल ने काटा है, तो दिस हैज बिकम ए माइनर ट्रेंड। तो अगला कैंडल में आपने को बाइंग ही ढूंढना है, तो आपको बाइंग इजीली मिल जाता है। इसमें आप 3 मेथड से मैंने बाइंग के लिए बताया, एक तो ओपन लो सेम रहता है तो ट्रेड लीजिए, या फिर रिट्रेसमेंट 50, 33, 66 के आसपास में मिलता है, और 60 मिनट्स में सेकेंड कैंडल का हाई करते ही ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और तीसरा मतलब एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं समराइज कर रहा हूँ। मतलब अपन यदि क्वार्टरली चार्ट या ईयरली चार्ट पे देखते हैं, देन वी गो टू डेली चार्ट एंड देन वी हैव टू चेक दैट, करेक्ट? या आप क्वार्टरली से आप सीधा मंथली में आ सकते हो, वीकली में आ सकते हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हो उसको। अभी जैसे देखिए सर, अभी ये क्या हुआ, रिलायंस का था चार्ट, ठीक है। ये देखिए ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल जो बड़ा सारा बना हुआ है, दिस इज ऑफ जून 30th कैंडल, ओके। दिस कैंडल हाई हैज कट द प्रीवियस कैंडल हाई। दिस इज मंथली और क्वार्टरली चार्ट प्लीज? दिस इज क्वार्टरली चार्ट। ओके। ये देखिए हमेशा क्या होता है पता है क्या, द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, द स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। अगर आप पहले 2 दिन, फर्स्ट 1 और 2 डेज आप फोकस करके हायर ही कौन सा बना है, ठीक है, आप सिर्फ पहले 2 दिन में अगर आप फोकस करेंगे ना, आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे प्रॉपर। बट इट शुड बी डन एट द स्टार्टिंग ऑफ एनीथिंग, एनी पीरियड, क्वार्टर बोलो या फिर मंथली बोलो या वीकली बोलो। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी चीज हायर हाई बन जाता है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो इमीडिएट स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट टाइम उसका क्वार्टर शुरू होते समय पे ही उसको माल उठा लिया जाता है, क्योंकि इट इज वेरी बुलिश। अभी देखिए दिस इज अरबिंदो फार्मा,
ये देखिए पहले रेड कैंडल हुआ, इसका हाई हायर हाई बन गया, तो अगला कैंडल में ओपन और लो इसका बताता हूं मैं कितना है। ओपन इज 767.2 एंड लो इज 762.7। ठीक है, तो यहां से वो 794 तक गया हुआ है, ऊपर 30 रुपीज ऊपर गया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। वी आर कमिंग टू अदर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो। मंथली में आ जाते हैं। ये देखिए आईटीसी का लेते हैं अपन एग्जांपल। ठीक है, ये देखिए सर, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा, तो आपने को जुलाई मंथ में आपने क्या देखना था कि आपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी इधर। ठीक है, तो ओपन कितना है इसका जुलाई महीने का, इट इज 194.55, लो इज आल्सो 194.55। so this candle has given up till today 44,640 rupees in 5 days। 5 दिन में इसने इतना प्रॉफिट दिया है। Are you with me? Yeah. You are getting this point? ये पॉइंट बहुत सिंपल है सर, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि अपने को अगर माइनर ट्रेंड आपको मिल जाता है तो अगले कैंडल में अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर माइनर ट्रेंड डाउन मिल जाता है तो अगले कैंडल में अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है उसके 3 तरीके हैं। एक तो ओपन लो अगर सेम रहा या फिर ओपन लो में डिफरेंस 0.3% ही रहा तो आप बाइंग के लिए उसको शूट करना चाहिए। दूसरा तरीका है रिट्रेसमेंट लगा के। रिट्रेसमेंट 33, 50 और 66 ये तीनों में कहीं ना कहीं आपको एक लेवल मिल जाता है जहां पे रिट्रेस कर जाता है, और रिट्रेसमेंट करते वक्त आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको ढूंढना है कि भाई उसने एन पैटर्न बनाया है क्या। एन का मतलब क्या है, एक स्विंग बनाया है क्या, स्विंग कट करके ऊपर गया है क्या, या फिर डबल बॉटम हुआ है क्या कहीं तो भी प्राइस में, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लेने के लिए। ठीक है, मैं और बताता हूँ आपको। ये देखिए LIC हाउसिंग में भी वैसा ही हुआ है। ठीक है, ये देखिए LIC हाउसिंग में ये मई का कैंडल को जून के कैंडल ने हाई काटा है, तो आपको इधर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। इधर ओपन वाज 265, लो वाज आल्सो 265। तो अगर आप ओपन लो भी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ और द स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, अगर आपको ओपन लो भी सेम मिलता है तो समझ लेना उस स्क्रिप्ट में आपको चांदी होने वाली है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वी आर कमिंग टू TCS। ये देखिए इस कैंडल हाई। एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो ओपन लो है ये कब देखना है, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर और सेकेंड डे ऑफ द क्वार्टर, और आफ्टर 2-3 दिन बाद देखें? क्योंकि फर्स्ट डे तो ओपन लो इट कैन बी सेम, करेक्ट, बट सेकेंड डे यू नेवर नो। सेकेंड डे यू विल नेवर नो, लेकिन फर्स्ट डे में ही आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। देखिए it is not only with open low you will take the trade, you will even take the trade on breakouts also। I'll show you one more breakout method है जिसके तरीके से अपन स्क्रिप्ट को लंबा लेके जा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये इसका TCS का भी वैसा ही हुआ। इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा तो अगले कैंडल के ओपन पे अपने को बाई करना था। 0.3% स्टॉप लॉस लगा दो, 0.3 और इवन 0.33 जो गैन का है ना, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.33, 0.5 एंड 0.66। तो 0.33 इज मोर देन एनफ फॉर टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट। आप उससे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए भारत फोर्स का देखिए, भारत फोर्स ऑल्सो डिड द सेम थिंग। अगर अपन कैंडल के ऊपर जाते थे तो कोई ट्रेड ही नहीं लेता था कि भाई ये इतना 1 महीने में इतना गिर गया है बोल के कोई ट्रेड नहीं लेता था। लेकिन इधर क्या था, ट्रेंड माइनर ट्रेंड वाज अप हियर।
You can see this red candle, the minor trend is up. The candle high is broken by this candle, so the minor trend is up. So the next month you have to only look for buy, open and low is same here, and so you can take the trade with 0.33% stop loss. देखो 0.33 का मतलब क्या हुआ कि जो ये स्क्रिप्ट का लो चल रहा है 316.30 पैसे चल रहा है, 316.30 इंटू 0.33% अगर अपन बोलते हैं तो 1 रुपए, ये 1 रुपये का स्टॉप लॉस है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको 39 रुपीज मिल रहा है पूरा। 39 बोले तो इसमें एक ही बताइए, हाउ शुड वी डिसाइड, इट शुड बी क्वार्टरली या मंथली देखें या ईयरली देखें, ये क्या मतलब, इज देयर एनी वे? देखिए या मैं बताता हूँ। देखो क्वार्टरली के लिए तो अभी 1 जुलाई इज फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, करेक्ट? तो आपको करना क्या है, हर क्वार्टर में बैठो भाई, और एक दिन पहले आप शाम में बैठो और कौन सा कैंडल ने क्वार्टरली ये बनाया हुआ है, माइनर ट्रेंड अप बनाया हुआ है, उसका लिस्ट बना लो। वो समझ गया, लेकिन मंथली बनाए या क्वार्टरली बनाए? देखिए ये जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, these are very fantastic profit making times. हाँ, आपको जब कभी भी ऐसा मिलता है ये टाइम फ्रेम का, जिस दिन भी ये, अभी समझो नया मंथ शुरू हो रहा है अगस्त का, समझो अगले महीने, तो आप 31 जुलाई को रेडी रहो, कौन सा माइनर ट्रेंड अप है और 1 तारीख को ओपन लो कौन सा है देखो, और उसके अंदर आप शूट कर दो उसमें ट्रेडिंग लेके 0.33% स्टॉप लॉस लगा के। That will be at monthly chart, correct? या मंथली चार्ट। आप वीकली भी वैसे ही कर सकते हो। अभी शुक्रवार का अभी खत्म हो गया, तो आपको करना क्या है, मंडे के दिन बैठना है, ठीक है, कल के दिन। अभी देखो कल के लिए अपन निकालते हैं, अभी चलेगा ना? अभी लेट अस गो टू डेली चार्ट। कल के लिए शूट आउट रेडी रखते हैं अभी। ये स्कैनर्स है क्या? हाँ, ये स्कैनर्स हैं। Can I know which is this software? This is Falcon सॉफ्टवेयर है। Falcon, इसका। या ठीक है, इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये भारत फोर्स का अपन स्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो इसका हायर हाई बन चुका है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर टुमारो हाउ यू विल टेक द ट्रेड इन भारत फोर्स, ओके। अभी देखिए, अभी अपन करने क्या वाले हैं, अभी इसमें वी आर गोइंग टू टेक द रिट्रेसमेंट नाउ, ओके। रिट्रेसमेंट में भी अभी 2 तरीके के रिट्रेसमेंट आएगा। एक तो बॉटम से एक रिट्रेसमेंट लेंगे आप, ठीक है, टिल दिस कैंडल, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट आपको इस कैंडल का हाई, इस रेड कैंडल, 1 मिनट रुकिए, हाई कितना इसका 341.85 और 340, अच्छा ठीक है, तो इस कैंडल से भी आप रिट्रेसमेंट लेंगे, ठीक है। इंट्राडे में आते हैं अपन अभी। देखिए कल के दिन आपने को 346 का एक लेवल रहेगा, जहां पे आपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं 346 और 342 और दिस लेवल 338। ये 3 लेवल में आपको कहीं ना कहीं बाइंग मिलेगा,
और वहां से मार्केट इसका वापस शूट अप हो जाएगा, भारत फोर्ज का। वापस से कैन यू गो बैक एंड जस्ट एक मिनट थोड़ा सा। या बता रहा हूँ। देखिए भारत फोर्ज का क्या हुआ है, इट इज ए अप ट्रेंड, ओके। या इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने नहीं काटा है, दिस इज ए इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल को नेग्लेक्ट कर देने हैं, वी शुड नॉट कंसीडर इनसाइड कैंडल एट ऑल, ठीक है। अच्छा, तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा है, तो अपन रिट्रेसमेंट दो तरीके से लेंगे। एक तो रिट्रेसमेंट लेंगे अपन ये इस कैंडल से इस कैंडल तक लेंगे, ठीक है। नॉट द इनसाइड कैंडल, करेक्ट, नॉट द इनसाइड कैंडल, ओके। तो इधर क्या होगा, either you will get a buy near this 33% 346 or you may get a buy near this 338। और एक अच्छी बात क्या है, अगर 338 के पास बाई मिलता है तो उसका मतलब है आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 338 है ना, आप 337 या 336 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हो इधर, क्योंकि अपन ने डिफाइन किया है ना कि भाई जब कभी भी कोई भी कैंडल का हाई हायर हाई बन गया तो आपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, इसी कैंडल के लोगों के आसपास ही ढूंढना है बाइंग अपॉर्चुनिटी। यू विल लुक फॉर ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर ओनली। दिस इज वन सिस्टम। सेकंड इज रिट्रेसमेंट। भाई इसका 33% हो सकता है या 50 हो सकता है या फिर ये 100 हो सकता है या 66 के पास आएगा। तो चारों में से कहीं ना कहीं आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन बाइंग ही करना है आपने कोई इधर, ठीक है। और एक स्क्रिप्ट लेते हैं अपन, कोई दूसरा निफ्टी का लेते हैं, चलो। देखिए ट्रेंड, अगर अपन किसी ने बोला कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, देखिए बड़ा टाइम फ्रेम में अगर अपन जाएंगे, ईयरली चार्ट में क्या हो रहा है, ट्रेंड इज इनडेफिनेट नाउ। अभी ट्रेंड इसका ऊपर ही है, लेकिन डाउन भी नहीं बोल सकते, अप भी नहीं बोल सकते। दिस इज एन आउटसाइड कैंडल। जब पिछले कैंडल का हाई है सर, दिस इज एन इंडेफिनेट कैंडल। इंडेफिनेट कैंडल बोल तो क्या है, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा है और इस कैंडल का लो भी इसने काट दिया है, ठीक है। तो इसका जब तक इसका हाई ऊपर का नहीं कट जाता या फिर इसका लो नीचे का नहीं कट जाता, तो ईयरली टाइम फ्रेम में आप यू आर इन हैंग्ड पोजीशन। आपको पता नहीं है अभी डायरेक्शन किस तरफ जाने वाला है, ठीक है। ये चार्ट अभी अपन ये चार्ट है निफ्टी का, है निफ्टी का। दिस इज एन आउटसाइड कैंडल। और अगर इसको मंथली में देखें तो क्या दिखता है? हाँ ले रहे हैं अभी अपन क्वार्टरली में आते हैं। क्वार्टरली में आते हैं, देखिए क्वार्टरली में भी दिस इज एन इनसाइड कैंडल ओनली। ये जो बड़ा कैंडल हुआ है ना लाल वाला, इसके अंदर ही एक कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो भी इधर भी इंडेफिनेट है, ठीक है। अभी अपन आते हैं मंथली। मंथली में भी अपन इनसाइड ही खड़े हैं अभी। वी आर इनसाइड ओनली, वी आर इनसाइड दिस बार। एक्चुअल में जो बड़े बार होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉल बार। टॉल बार का एक्शन हमेशा ये रहता है कि टॉल बार का हाई के पास शॉर्ट करो, टॉल बार के लो के पास बाई करो। इसका एक्शन हमेशा यही रहता है। टॉल बार जब कभी भी आपको मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, आप हमेशा देखना कि उसके हाई के पास शॉर्ट करो और लो के पास बाई करो। आपको एक एग्जांपल और उसके बाद के बार को वी हैव टू इग्नोर, इज इट? या अगर कोई आउटसाइड बार हो गया ना, तो आपको इनर मूवमेंट्स छोटे टाइम फ्रेम में जाके पकड़ना पड़ेगा। अभी देखिए वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। वीकली चार्ट इज अप ओनली नाउ। ये देखिए, ये कैंडल का हाई इसने काट दिया, तो इस कैंडल का हाई भी इसने काट दिया। तो अभी इधर तो ट्रेंड ऊपर का ही चल रहा है। इवन दो दिस हैज कम डाउन, ये हायर बॉटम ही बना है इधर। क्या
इधर लोअर बॉटम नहीं बना है, ये बॉटम से ये बॉटम ऊपर है, तो दिस इज अ हायर बॉटम. सो द माइनर ट्रेंड एंड मेजर ट्रेंड बोथ आर अप एज पर वीकली चार्ट. एक खास बात बता देता हूं आपको ज्ञान की खास बात यह है कि अगर आप इस पॉइंट को सही तरीके से नोट कर लिए तो इट कैन गिव यू इजीली 50 लाख पर एनम आप कमा सकते हो इजीली. ठीक है. ज्ञान क्या बोलता है, इन एनी ट्रेंडिंग मार्केट, ओके, द कैंडल विल नॉट फॉल फॉर मोर देन 2. ये 2 कैंडल से ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा. अभी देखिए ट्रेंड क्या है, ऊपर का ट्रेंड है, okay? ये ऊपर का दिस ट्रेंड इज अप, इट इज मूविंग अपवर्ड, ओके, सो द ट्रेंड इज अप. इन एनी ट्रेंडिंग मार्केट द फॉल विल नॉट बी फॉर मोर देन 2 कैंडल्स. ये देखिए ये पहला कैंडल, ये कैंडल का लो किसने काटा, इस कैंडल ने काटा, तो इस कैंडल का लो किसने काटा, इसने काटा. सो दिस, अगर आपको ये पता था कि ये मार्च का जो कैंडल है, दिस इज सेकेंड कैंडल, ओके, आफ्टर द टॉप, दिस कैंडल लो विल नॉट बी ब्रोकन. अगर आप यहाँ पे माल उठा लेते थे तो आपको यहां से यहां तक पूरा खाने को मिलता है. ओके, देखिए ये देखिए वापस क्या हुआ, ट्रेंड ऊपर जा रहा है. ओके, दिस इज अ कैंडल हाई और यू कैन से दिस इज अ स्विंग हाई. फ्रॉम हियर इस कैंडल ने इस पिछले कैंडल का लो को काटा. ठीक है, दिस इज फर्स्ट कैंडल डाउन एंड इस कैंडल के लो को इसने काटा, दिस इज सेकंड कैंडल डाउन. इफ यू न्यू दैट this candle of 30th August 2019 is the second candle low, definitely you should look for buying opportunity at this candle low, and this is the big gain you are going to get. Okay, ये देखिए what is the trend here, the trend is upward. इधर इस कैंडल का लो किसने काटा, इसने काटा, इस कैंडल ने काटा. ओके, इस कैंडल का लो किसने काटा, इसने काटा. ओके, सो आपको ढूंढना क्या था कि 30 नवंबर 2016 का लो को आप किस तरीके से कैच करेंगे. रिट्रेसमेंट करो, डबल बॉटम करो या फिर कोई भी पैरामीटर करो, आपको इसका लो पकड़ना है ताकि आप ये पूरा गेम खा सकते हैं. Yeah, understood. You got this point? This point is a major. देखो सिंप्लिसिटी बहुत है इसमें टेक्निकलिटीज कुछ भी नहीं है. ओके, सिंप्लिसिटी में ही पैसा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग नॉट लेस देन 20 इंडिकेटर्स इन आवर सिस्टम. I hope all of you are following and understanding what I am trying to tell. Yeah. देखिए similarly what happens, you know, ये देखिए अभी भी देखिए ये टॉप हुआ था. हाँ बोल. एक मिनट लेफ्ट जाना और. हाँ बोल. यहाँ पे this is not valid, right? See, here I'll teach you that magic also. Right now I am telling you how it is taking the support of second candle low. Okay, see here also we were at the top on 31st January 2020. We were at the top of the market. The high was 12,419. Okay, इस कैंडल का लो किसने काटा, इसने काटा. ठीक है, इस कैंडल का लो किसने काटा, इसने काटा. तो आपने को 31 मार्च 2020 को ये पता चाहिए था कि भाई आपने को बाइंग ही ढूंढना है, आपने को सेलिंग नहीं ढूंढना है इस कैंडल में. बोलते जब ये बॉटम मारा ना, इधर ये जो लो बना था 7,600, आपको इधर बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर मिलता था तो आप बाई करके बैठना था, माल को गट पकड़ के बैठना था, ताकि आप ये जो गेन मिल रहा है ना, इधर से जो गेन मिल रहा है, ये पूरा गेन खा सकते थे आप. बट सर ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाले कैंडल इज द ओनली कैंडल, उसके बाद कोई नीचे का कैंडल नहीं आएगा? देखो क्या बोलते हैं, इफ यू गो एंड बैक टेस्ट, ओके, 90% ऑफ द टाइम्स इट हैज रेस्पेक्टेड द सेकंड कैंडल लो. ओके. ठीक है, अभी देखिए अपन एक कॉमन चीज करेंगे. अभी ये क्या है, 31 मार्च 2020 का है. ठीक है, वी विल कम टू डेली चार्ट हियर. ओके,
अभी जब हम डेली चार्ट में आ गए तो ये फॉलो अप में फॉल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, आपको ये कैंडल का लो कैसे पकड़ना है, आपका यही सवाल पूरा है या फिर इससे नीचे भी जा सकता है, वो सवाल है। मतलब सेकंड डे इससे नीचे जा सकता है नहीं जा सकता, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और भी एक कैंडल नीचे आ सकती है सेकंड वाली, उसके बाद ठीक है ना। देखो अभी है ना, अपन बेसिकल चीज बताए हैं, अभी इसको कैलकुलेशंस कैसे करना वो भी बता सकता हूं मैं अभी, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट क्या है, दिस इज 20 जनवरी का हाई 12,413 है, राइट, ठीक है। तो एक्चुअल ज्ञान का जो कैलकुलेशन रहता है, स्क्वायर ऑफ 9 का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा लेके बताता हूँ। का लो जो आ रहा है 7526, 12,496। देखिए इसको कैलकुलेशन के लिए आप बोलते हैं ना, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आप परफेक्ट लो इसको तुरंत में बता सकते हैं, लेकिन टाइम कैलकुलेशन और इसके स्क्वायर रूट का मेथड जो है मैं आगे क्लास में दूंगा, तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि इसके मेजर सपोर्ट्स क्या है, ठीक है। देखिए अगर आप कोई भी समझो अपन ने कोई लाइंस डाल दिया समझो कहीं पे भी, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब अपन कोई भी आंख बंद करके भी चार्ट में लाइन डाल देंगे, ठीक है, वो कैंडल किसी ना किसी लाइन को सपोर्ट लेगा ही लेगा, राइट राइट राइट, समझे ना। लेकिन आपको वो डिफाइन कैसे करना पड़ेगा कि भाई यहां से ही ये पलटी मारा या फिर यहां से ही ये पलटी मार दिया क्या नहीं मारा, आपको उतना आइडिया आने के लिए ना, अगेन यू हैव टू लुक फॉर ये हायर ही कैंडल ने काट दिया, ठीक है, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, आपको रिट्रेसमेंट लगा के आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। देखिए ये 33% पे आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट में बाई मिल रहा है इधर, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो स्टार्ट विद है ना, अपन बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, इसके तरीके बहुत सारे हैं जहां से आप इसका बॉटम आउट हुआ है नहीं हुआ है, कैसे, जैसे कि समझो यहाँ से अगर आप पकड़ते हैं तो नंबर ऑफ डेज अगर आप काउंट करते हैं, ठीक है, तो 45 आया है, ठीक है। 45 डेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इज ए गैन नंबर। 45 बोलते क्या है, गैन यूजर्स 45 डिग्रीज जो बोलते हैं ना, हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है ज्ञान के स्टडीज में। मल्टीपल ऑफ 9 ना? नहीं 45, हाँ मल्टीपल ऑफ 9 है, लेकिन इफ यू टेक बाय डिग्रीज, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको अभी, जैसे दिस इज ए सर्कल, ये देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल क्या है 360 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको 4 पार्ट्स में कर दिए, सो 90 डिग्रीज के हो गए ईच सर्कल, राइट। इसके पार्ट्स, इसको वापस आप डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्रीज का हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ तो वो कैसे करते हैं, प्राइस को 1 रोटेशन ऑफ ए प्राइस, ओके, 1 रोटेशन ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 2, उनके हिसाब से 2 बोलते हैं वो नंबर, ठीक है। अभी समझ के चलो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन। इफ सपोज वी आर एट दिस बॉटम नाउ, ओके, I'll take the bottom. ज्ञान का लेवल्स निकालने का तरीका है ना, 2 तरीके का है, एक तो डायनामिक तरीका है और एक स्टैटिक तरीका है। डायनामिक तरीके का मतलब क्या है, एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप का लेवल्स पकड़ के आप आगे के लेवल्स निकाल सकते हो,
ठीक है। और स्टैटिक तरीका क्या है, ये स्टैटिक नेचुरल नंबर्स को पकड़ के ही होता है, पूरा पहले से ही आपके पास डिफाइंड चार्ट रहता है, वो डिफाइंड चार्ट के हिसाब से ही वो नंबर्स का मूवमेंट पकड़ते हैं। ये देखिए अपन पहले अभी ये बॉटम पकड़ लिया समझो अभी तक, ठीक है। अभी ये कहाँ तक जाएगा मार्केट, यहाँ से आपका अगर प्रश्न है कि यहाँ से कहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो 7526 का क्या करते हैं आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, इट कम्स टू 86.75। ओके, इसको आप 2 ऐड करते हैं तो 88.75 होता है, और उसको वापस डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो 7877 का पहला लेवल आता है। आई जस्ट मार्क दिस लेवल्स, और ये आपको डिटेल में किस तरीके से लेवल्स निकालना है, आपको पूरा रोड मैप कैसे बनाना है वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। ये तो जस्ट एक फॉर योर दिस थिंग क्वेरी आई एम शोइंग यू। इसका स्क्वायर रूट निकाले, प्लस 2 किए 36 स्क्वायर रूट की है, मैं मेथड पूरा बताऊंगा आपको किस तरीके से अपने को लेवल्स आगे के डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं कि गैल इन्हीं लेवल्स का एक चिट्ठी बना के जेब में रखते थे और सिर्फ इस चिट्ठी के बेसिस पे वो ट्रेड मारते थे। ओके, देखिए अभी जो टॉप बना था ना, ऑलमोस्ट टेकिंग सपोर्ट हियर। अभी इस जब कभी भी इस लेवल के नीचे आएगा मार्केट, इस लेवल के नीचे क्लोज होगा, तो अपने को कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट। 10,572 इज द लेवल। 10,572। ओके, हाँ देखिए ऑलमोस्ट सपोर्ट यहीं पे ले रहा है, ओके। इधर रेजिस्टेंस इधर ही ले रहा है, ठीक है। इधर देखिए इधर से ही सपोर्ट लेके चढ़ा है, ठीक है। और इधर इस रेजिस्टेंस के ऊपर इधर क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ से ही नीचे आया है मार्केट। इधर देखिए वापस इधर ही सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इधर ही रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये देखिए इधर रेजिस्टेंस लिया इधर, और वापस सपोर्ट इसी लेवल के पास लिया है, ओके। इधर ही रेजिस्टेंस लिया है, इधर आसपास में सपोर्ट लेके चढ़ा है। तो ये गैल लेवल्स जो है ना, दे आर रियली वंडरफुल, बट व्हाट हैपेंस यू नो, प्लेइंग ऑन अ सिंगल थिंग डज नॉट अश्योर यू even 70% गारंटी, बट यू शुड हैव ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स। भाई इस चीज को लेने के लिए मैं क्या करूं, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन टेक इनटू कॉन्फ्लुएंस। अब जैसे देखिए ये कैंडल का हाई जो है इस कैंडल ने काटा, ठीक है। अभी ये क्या है, ये गैन नंबर के ऊपर है, ओके। सो इधर एक श्योरिटी हो गई कि भाई इस लेवल के आसपास में अपन कहीं पे भी बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इस कैंडल का लो इसने काट दिया और नीचे आ गया, फिर इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने काटा, तो इधर क्या हो गया, एक श्योरिटी हो गई कि इस लेवल का सपोर्ट लेके चल रहा है मार्केट। तो इस कैंडल का लो जो था, दिस इज अ माइनर ट्रेंड अप कैंडल, इस कैंडल का लो के आसपास ही मिला ट्रेड आपको। इस कैंडल का लो देखिए कितना है, 8976 है, और इसका 8988 है। तो 10-12 पॉइंट में आपको इधर ट्रेड मिल गया, इधर सिंगल ट्रेड। तो यहाँ से देखिए
वन साइड डायरेक्शन मिल गया आपको यहाँ से। ओके, ये देखिए अभी अपन ये बॉटम से अगर काउंट करेंगे ना, नंबर ऑफ डेज, कमेंट डेज प्लीज कमिंग नाउ। अभी आ रहा है 67 डेज। ये देखिए 66.66 का भी इंपॉर्टेंस जो बोलता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट एक ज्ञान के लेवल्स बोलो या फिर ये नंबर्स जो है ना रेस्पेक्ट होते हैं पूरे। ठीक है, अभी हाउ फार ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विथ व्हाट आई एम टेलिंग और यू वांट समथिंग टू चेंज फ्रॉम माय साइड? Hello. I think it is going good. Maybe we are good. Going good, no? हाँ. तो कोई confusion, doubts वगैरह है क्या सर? अच्छा, एक very basic question I have. Yes. ये like ये different levels. Yeah, pardon? I was disconnected actually. ये levels कहाँ से आए थे? हाँ, देखिए अभी ये लेवल्स निकालने का दो तरीका है। देखिए पहला तरीका ये है कि हाई या लो से आप लेवल्स निकालेंगे। दूसरा तरीका है इसका स्टैटिक लेवल्स रहते हैं। स्टैटिक लेवल्स बोल तो भाई इसके लेवल्स पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, इसको बार बार आप चेंज नहीं करेंगे। एक बार आपने इसका शीट बना के आपके जेब में रख लिया तो ये स्टैटिक लेवल्स हमेशा यूज में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार आपको डायनामिक लेवल्स ढूंढने के लिए आपको चार्ट के सामने होना चाहिए, चार्ट का हाई और लो आपको पता होना चाहिए। तो 70% ऑफ द ट्रेडर्स यूज स्टैटिक लेवल्स एंड 30% ऑफ द ट्रेडर्स यूज डायनामिक लेवल्स। ओके, बोथ वर्क वेरी गुड। ओके, अगर अपन स्टैटिक लेवल्स की बात करें तो मैं आपको स्टैटिक लेवल्स बताता हूँ। एक बार आपको कैलकुलेशन बता दूं क्या किस तरीके से लेवल निकालना है? हेलो, we can hear you. Yes. Yeah. See, as I said you, देखिए अर्थ क्या है, 360 डिग्रीज में सन घूमता है अर्थ को, और हमारे दिन कितने हैं? 365 डेज है इन ए ईयर। ओके, दिस एक्चुअली बोथ आर सेम। बोल तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डे, वैसे ही हो रहा है। करेक्ट? 365 डेज अंदाजा में अप्रोक्सीमेटली। करेक्ट? तो अपने को क्या है, प्राइस के अंदर सपोज प्राइस इधर है 100। ओके, अपने को इसका ऊपर का डिग्री ढूंढना है और नीचे का डिग्री ढूंढना है। करेक्ट? तो व्हाट यू विल डू, you will square root this 100. How much it comes to? It comes to 10. Okay. For this we'll add 2. For upper level we'll add 2. It comes to 12. Correct? इसको फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 144, या करेक्ट। ये हो गया ऊपर का लेवल। अभी नीचे का लेवल ढूंढना है अपने को। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। करेक्ट? 10 माइनस 2, इसको -2 कर दो, कितना हो गया? 8 हो गया। 64। 8 इंटू 8 कर दो, 64 हो गया। करेक्ट? तो मार्केट का मूवमेंट क्या रहेगा? 64 से कहाँ जाना चाहिए? 100 जाना चाहिए। 100 से कहाँ जाना चाहिए? 144 जाना चाहिए। ओके, सिमिलरली अपन कोई भी प्राइस का इस तरीके से निकाल सकते हैं। 144 से ऊपर जाने का लेवल, देन यू अगेन -2 एंड देन
नहीं 144 को है ना, आप स्क्वायर रूट निकाल 12 है समझो, 144 का स्क्वायर रूट कितना है? +2 and then you यस +2 196 14 हो गया। ओके हाँ 14 इंटू 14 कितना हो गया? 196 हो गया। करेक्ट। तो इस तरीके से लेवल्स निकाल सकते हो। अभी ये लेवल्स जो है ना, एक तो स्टैटिक लेवल रहता है, ये जो है समझो ये हाई है या लो है, या ये तो स्टैटिक पकड़ सकते हो, स्टैटिक लेवल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एग्जैक्ट हाई के पास से लेवल ले लो, लो का लेवल ले लो, ठीक है, यहाँ से आप इसके इंटरमीडिएट लेवल्स निकाल सकते हो, और ये परफेक्ट रेस्पेक्ट होता है। ये लेवल्स के आसपास ही मार्केट टर्न होता है या रिवर्सल देता है। देखो हम थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं अभी। यू वांट मी टू शो यू एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट? अभी भारतीय में देखिए, भारतीय एयरटेल ना, भारतीय एयरटेल का 640 610 का लेवल है। 1 मिनट निकालते हैं अपन। ये देखिए 363.8 का लो है, ठीक है। 1 मिनट अपन एक लेवल डाल लेते हैं 363.8। So I am muting all. If whoever wants to speak, they can speak in between. Unmute again. Unmute. देखिए ये लेवल क्या है? 363.8 है बॉटम जो बन चुका है, ठीक है। जब बॉटम बन चुका है 363.8, 363.8 स्क्वायर रूट निकाल लो इसका। इट इज कमिंग टू, I'll write it down here, okay? अराउंड 18 हो गया, 19.07, ओके। इसको फिर से 19, इसको -2 +2 कर दो, ऊपर के लेवल से ना अपने को 21.07 इंटू कर दो 442 +2 तो 444 आया। इस 444 okay. Now coming to the chart, we will mark that 444. ओके, ये देखिए इस कैंडल का रेजिस्टेंस लिया है और अपन आगे के डालते हैं। इसको स्क्वायर रूट किया, फिर से +2 किया, इंटू किया, तो 532 आ रहा है अगला लेवल। 532 ये देखिए रेजिस्टेंस इधर ही लिया, परफेक्ट। फिर से अगला लेवल लेते हैं अपन, 628 आ रहा है। कितना आ रहा है? सॉरी 628। ओके, ठीक है। तो अभी जो ये सपोर्ट ले रहा है, देखिए इसी 532 को लेवल के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, करेक्ट। इधर देखिए, इधर क्या हुआ, हायर हाई बना, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, तो इधर ही आपको मिल रहा था। लेकिन हायर हाई जो आप देखते हैं ना, डायरेक्टली डेली कैंडल पे आप मत करना, आप बड़े टाइम फ्रेम पे ही ढूंढना हमेशा, हायर हाई वगैरह जो भी ढूंढना है। अब डेली में करेंगे तो थोड़ा रिस्की पार्ट रहेगा, बट इफ यू गेट इट इन बिगर टाइम फ्रेम, नो, यू विल एंजॉय गुड प्रॉफिट्स। अभी जैसे ये हाई को ये हाई ने काट दिया, ठीक है, तो इधर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इधर कहीं ना कहीं तो सस्ते छोटा स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, ओके।
अभी अपन ने ये बना इसका किसका है ये, भारती एयरटेल का बनाया है इसका। इसमें टाइम ढूंढने का भी तरीका है। हेलो, हाँ देखिए इसमें टाइम ढूंढने का भी तरीका है। देखिए इसका स्क्वायर रूट जो हमने किया बॉटम का, ठीक है, बॉटम लो वाज 363.8 है, करेक्ट। उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 19 आता है, 19। हाँ तो 19 के पार्ट में आपको टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए इस कैंडल से अगर आप 19 का अगर लाइन डालते हैं तो आपके ऑलमोस्ट ऑप्शन बॉटम्स मिलते हैं इसमें। 19 कैंडल्स पे। हाँ, जो भी लो रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। तो इन मल्टीपल्स ऑफ 19, ठीक है, वो चलेगा। ओके ठीक है, ये देखो, ये नथिंग इज फिक्स्ड, दिस आर ऑल जस्ट आवर टेस्टेड एंड ट्राइड एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन ज्ञान का तरीका सारे इस तरीके से ही होता है। अभी आप अपन दूसरा कोई भी ले लेते हैं, चलो, और आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। कोई भी स्क्रिप्ट बोलो, आप बोलो, मैं आपके चॉइस का स्क्रिप्ट लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर देखिए। हाँ लगा। इसमें जो मैंने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया ना, वी आर डायरेक्टली टेकिंग द हाई और लो, ठीक है। इसमें और एक तरीका है कि भाई आपको बड़ा टारगेट्स निकालना है, तो उसका तरीका भी अलग है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट रोड मैप। अपन तो अभी एज इज अपन रोड मैप निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी इसका लो क्या है, इसका लो है 214.35, ठीक है, 214.35। स्क्वायर रूट निकाल लो तो 15 आ रहा है, 15। तो ये देखिए 15 दिन तक 115। ये देखिए हर 15 दिन तो ऑलमोस्ट टॉप के पास आ रहा है या फिर बॉटम के पास आता है। तो 15 दिन के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने सही कैच किया लो तो। समझे ना। अभी इसके बॉटम के हिसाब से अगर आप प्राइस कैलकुलेट करना है ना, 214.35, 214.35 स्क्वायर रूट प्लस 276 का पहला टारगेट है, स्क्वायर रूट प्लस 347 का दूसरा टारगेट है, स्क्वायर रूट प्लस 2। तो 425 का तीसरा टारगेट है इसका। 425 देखिए, 425 यहां तक जाएगा वो 425। अभी जो एक्चुअल में जो ट्रेड्स, किसी को भी कोई ट्रेडिंग करना है ना, तो शार्पेस्ट पॉइंट, दिस इज अदर देन ज्ञान, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आवाज आ रही है सबको? या ओके, फाइन फाइन, वेरी नाइस। एक सिंपल तरीका बता देता हूँ जिससे आपको कंफर्म टू कंफर्म द बेस्ट ट्रेड मिलेगा और विद द स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस मिलेगा।
Okay. See, the market has fallen to 7526. Okay. Hello. देखिए, the market has fallen to 7526. उसके पहले स्विंग टॉप क्या दिख रहा है आपको? 8854 दिख रहा है. Correct? Are you able to see this number? 8854? Yeah. Yeah. Okay. देखिए, जब कभी भी स्विंग टॉप को स्विंग टॉप काट देगा, दूसरा स्विंग टॉप, ओके, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इस लो से इस कैंडल का रिट्रेसमेंट लेना है, ठीक है, और आपको ये 66% या फिर 50% के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. Hello. Yes, sir. Are you getting my point? Yes. I'll show you in this thing. मैं इसमें बताता हूँ. देखिए, जब कोई मार्केट गिरते रहता है, ठीक है, और बॉटम के बाद में ये स्विंग टॉप कट गया, पहले का स्विंग कट गया, ओके, और ये जब नीचे आता है ना, आपको इसका सिर्फ यहाँ से यहाँ का आपको रिट्रेसमेंट लेना है, और आपको 66 नहीं तो 50 नहीं तो 38 पे इसका रिट्रेसमेंट में बाई मिलेगा, और यहाँ से ये जाएगा 161%. हाँ, कंफर्म जाता है वो. ये देखिए, मैं आपको उसका रिट्रेसमेंट लगा के बताता हूँ, एक्सटेंशन लगा के बता रहा हूँ. ये देखिए, ये देखिए 161 we achieved the target here, 10,501. दिख रहा है आपको? You got it? $10,571 आ रहा है क्या? हाँ, 10,501, 501. ओके. हाँ, तो ये पैटर्न है ना, कंफर्म चलता है. आप कोई भी स्टॉक में ले लो, आप सिर्फ देखो. व्हाट आई वुड रेकमेंड एनीवन हु इज ट्रेडिंग इन द मार्केट, ही मास्टर ए पर्टिकुलर पैटर्न. एक पर्टिकुलर पैटर्न को मास्टर करो आप, भले वो क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने चार्ट में आपको बताया था, ट्रेंड के बारे में बताया, उसको मास्टरी करो, या फिर यू मास्टर एनी पैटर्न, लेकिन उसको हर ट्रेड में फॉलो करो, आपको जरूर पैसा मिलेगा. अभी देखिए, मैं आपको दूसरा स्क्रिप्ट दिखाता हूँ. इट इवन वर्क्स इन क्या बोलते हैं, इंट्राडे आल्सो इट वर्क्स. ये देखिए, ये बॉटम हुआ, ये स्विंग टॉप था 273 टाटा कंज्यूमर्स का, इसका हाई कट गया, ठीक है. तो अगर आप इसको एक्सटेंशन लगाएंगे ना, लो टू हाई, तो इसका 161 का टारगेट देखो एग्जैक्ट अचीव हुआ है, 395 का. अरे हाउ डू यू पिक द स्विंग हाई? एक चीज बताइए. ये देखिए, हाँ ये एक्चुअल में कैसा है, देखिए आपको है ना, फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न टू ड्रॉ द स्विंग्स. फर्स्ट पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको सिंपल में. गैन स्विंग जो बोलते हैं ना, हाउ टू ड्रॉ गैन स्विंग, इट इज सिंपल ट्रिकी, लेकिन बहुत वंडरफुल है. अगर आप गैन स्विंग ड्रॉ करना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आई थिंक दैट देयर इज नो चैलेंज फॉर यू देन. शुरुआत में मैं हर चार्ट में मैनुअली ड्रॉ करता था, लेकिन ये थोड़ा ऑटोमेशन होने के बाद में वो अपन ने बंद कर दिया डालना. लेकिन जितना मैनुअली आप करते हैं ना, उतना परफेक्शन आता है आपका चार्ट रीडिंग में. क्योंकि ऑटोमेशन में क्या होता है, इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल को कंसिडर नहीं करता है चार्ट. वो दिक्कत आ जाती है. देखिए, मैं आपको सिंपल
एक 3-4 स्टेप बताऊंगा आपको किस तरीके से चार्ट में स्विंग ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए इस बॉटम से मार्केट ऊपर गया, इसने हाई बनाया, इसने भी हाई बनाया, इसने भी हाई बनाया, और यहां तक गया तो आप इधर एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। इधर ये स्विंग बन गया, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, यहां से जस्ट एक मिनट, ये दिस इज डेली चार्ट करेक्ट? दिस इज डेली चार्ट ऑफ निफ्टी 50, ओके ठीक है, ओके ठीक है। यहां से देखिए इसका लो कटा तो लो के पास गए अपन, ठीक है, यहाँ तक लो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर इसका हाई कटा तो हाई के लिए आप एक चार्ट ये लाइन डाल लो, ओके। बाद में क्या हुआ, फिर से ये हाई से ये लो कटा और इसका लो फिर से कटा तो आप यहाँ तक डालेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस इज ये स्विंग बना है, ठीक है। लेकिन ये स्विंग में अभी इधर कुछ भी रीडिंग अभी नहीं आ रहा है, until and unless you don't compare it with the previous swings, ओके। यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन ऊपर जा रहे और इसका हाई कितना है 913170, 9128, ये इनसाइड कैंडल है, ये भी इनसाइड कैंडल है, ये ऊपर गया कैंडल, ठीक है। यहाँ तक एक स्विंग बना, ठीक है, और एक यहाँ से देखिए ये स्विंग लो हुआ इधर, करेक्ट। और यहाँ से देखिए ये 2 कैंडल ऊपर गया, ओके। यहाँ से इसको वापस नीचे हुआ 1 कैंडल। आपको सिर्फ एक इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल का कंसेप्ट बता दूंगा ना, आपको आसान हो जाएगा। यहाँ तक गया है, यहाँ से फिर से नीचे आया इधर स्विंग। एक्चुअल में इस तरीके से स्विंग डालना चाहिए अपने को कोई भी टाइम फ्रेम में। If you learn to do this now, nothing like that, you will be able to easily identify the trend without any technical analysis, nothing। कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये इनसाइड कैंडल है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये बाहर गया, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर से इसका इसके नीचे आया है, ठीक है, तो फिर से ऊपर गया। एक आउटसाइड कैंडल आएगा ना, अपन वहां पे स्टॉप करेंगे। ये देखिए यहाँ से नीचे 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 ही आ रहा है, ठीक है। ये अपन लाइंस ड्रॉ करने के बाद में इसको रीड कैसा करना वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये देखिए ये इनसाइड कैंडल ही है क्योंकि इसका हाई नहीं कटा इधर, ठीक है। ओके, जस्ट ए क्विक टाइम चेक। हाँ बोल। 5 बजे तक हमने सेटअप किया था, शैल वी एक्सटेंड इट? क्या करना है, या यू वांट टू हैव वन मोर सेशन लेटर? Yeah, I think that will be better. We can have one more session maybe next week. Yeah, next week we'll have some more good preparedness, okay? और नेक्स्ट वीक में अपन करेंगे। मैं खत्म करता हूँ 4 मिनट में। ओके ठीक है जगह, थैंक्स अ लॉट। जगदीश भैया, if you can share some of the material that will be helpful also. एक्चुअल में क्या है पता है भैया, सारे मैंने ना मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं। नो प्रॉब्लम। ऐसा प्रेजेंटेशन बना नहीं, बट आई विल गिव इट टू यू, आई विल डिलीवर इट टू यू, नो इशू। या श्योर। या That is fine. Thank you Jagdish bhaiya. I think आपने मतलब you gave a lot of good things you tell us. I think I will request Sushil bhaiya to tell more about it. Then I. ये देखिए अपन ये डाल रहे हैं इसको ट्रेंड को। Just a second. Yeah, I have never actually GAN theory मैंने कभी स्टडी नहीं करी है, so it's a new thing. It looks interesting. Yeah, it's really interesting. अभी देखिए ये जो हमने स्विंग्स डाला है ना, इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड कहाँ पे मिला है पता है क्या? इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे मिला है, इस पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट स्विंग है। सॉरी, ठीक है, दिस इज अ स्मॉलेस्ट स्विंग है,
सबसे छोटा स्विंग है इधर, एक ही कैंडल का लो बना के इसने ऊपर फाड़ दिया इधर, करेक्ट। अभी देखिए एक्चुअल में ये पहला स्विंग टॉप था, ये दूसरा स्विंग टॉप था। जब दो स्विंग टॉप कट जाते हैं ना तो समझ लेना मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ये देखिए, ये पहला स्विंग टॉप था, ये दूसरा स्विंग टॉप था, ये जब कट गया तीसरे स्विंग टॉप से, समझ लेना अपना अभी मार्केट ऊपर का ही रास्ता पकड़ लिया। अच्छा, हाँ, तो स्विंग अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे, पूरा स्विंग कैसे ड्रॉ करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अपन किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। और आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लेवल पे शॉर्ट करना है। जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल दे देता हूं आपको तुरंत में, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। ये देखिए, ये 336 पॉइंट को एक स्विंग बनाएगा। एक्चुअल में ना ये डिफरेंस लेना पड़ता है अपने को, ये डिफरेंस कितना आ रहा है वो रेंज मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि अभी 2 मिनट में बंद हो जाएगा बोले। करेक्ट। So I'll introduce you to the 2-digit roadmap, 3-digit roadmap, 4-digit roadmap. वहां से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि दिस 214 जो फॉर्म हुआ है ना, उसका रीजन क्या है। 214 पे अपने को लेना है नहीं लेना है माल, आपको आसानी से सेकेंड्स में पता चल जाएगा। वंस यू गेट accustomed to the chart ना, to the static levels, you will come to know. Okay, great. Okay, thank you all for listening to me. I'm just sharing my experience. I tried my best to deliver you what I am able to understand about GAN. Yeah, this is very excellent actually. Actually, it's a very on Guru Purnima. Yeah. Good start. Thanks so much. Yeah, thank you. I think next week के session, next week एक और session will plan well in advance, and उसके बाद I think सुशील भैया का भी एक session होना चाहिए technical। नहीं, ऐसा मेरे एक्सपर्टाइज नहीं है किसी में भी। आई यूज मल्टीपल। आपका एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे को इनकी बातों से ये एक चीज समझ में आई है कि व्हाटएवर यू डू, यू जस्ट एक चीज पे यू कंसंट्रेट एंड यू जस्ट एक्सपर्टाइज इन दैट थिंग। draw theory, whether you do price volume, yeah, whatever it is, momentum, you master that. just एक ही चीज पे एक्सपर्टाइज करिए, मल्टीपल व्यू में लर्न। अभी what he's saying is excellent, correct, but unless, see, if I leave everything and just concentrate on GAN, then it makes sense, correct। जैसे इन्होंने GAN पे अपना पूरा ध्यान दिया, which is good। As rightly said by Shyam ji, Sushil ji, आपका एक क्वेश्चन भी होना चाहिए, so you also must share all your experience with us. Yeah, sure. I think next time जो भी जितना भी है, we'll share. Each one will share their experiences. Yeah, I think, yeah, sure. Perhaps let us finish one more session from Jagdish Bhaiya, and उसके बाद एक और सेशन सुशील भैया जब भी अवेलेबल होंगे, एक सेशन maybe 1 hour to share his experience. I have been blessed. सुशील भैया का एक आधा घंटा 45 minutes in fact he gave me once, so I think we'll take. Actually, I could honestly I'll tell you, मैं ऐसा आपको फॉर्मल वे में नहीं कर सकता हूँ, but if we can meet informally, we can have a lot of discussion on this. Comfortable in a formal way, to be quite honest. But no problem. Informally, we can always meet. We can have a meet and then we can discuss on the market. That will be much more beneficial, I believe. Yeah, sure. Yeah, thanks Amit for setting this up. No problem. Thank you, Amit. Thank you. Thank you. Bye. Thanks. Bye. Okay. Thank you. Thanks so much. Thank you. Thank you.